Om Shanti. So today is Dadi Prakash Mani's day, as well as we are celebrating Raksha Bandhan. Can sit down little while. So I think most of Baba's children know Dadi Prakash Mani very well. Dadi has visited here twice in New Zealand and also in Madhuban. Whenever you go, you get that opportunity to meet Dadi also. So Dadi's Lokik name was Rama, and Didi Manmohini's Lokik name was Gopi. So Baba used to call them Gopi Ram, because Dadi Didi had great company. They did lot of service together. So Dadi and Mama both were a classmate. They used to go to school together. And from her childhood, Dadi had that determined thought that she wants to become a Meera of the Krishna. She had great love for Krishna. And one day Dadi was resting in her dream. And she saw that beautiful garden is there. And in that garden, baby Krishna was coming towards Dadi. And behind baby Krishna, Brahma Baba was standing there. And after that vision, she became very, very happy, because at that time, she used to think that Krishna is a god. So she had the vision of the god. And but after a few days, Dadi visited the Om Mandli. Her Lokik friend used to go to Om Mandli. So she went with her friend to Om Mandli, where Brahma Baba was sitting there conducting satsang. And when she saw Brahma Baba, very powerful might was emerging from Baba's forehead. And when she received that Sakash current, she straight went into the trance. And in trance, again Dadi had that vision which she had in her dream. Yes, beautiful garden was there. Baby Krishna was there, was coming towards her side. And she became very, very happy. And Dadi's Lokik father, he was a businessman. And Lokik father, also astrologer, Jyotishi. So he had looked her astrology and said that Dadi will not become, she will not get married in her life. She will remain single, and she will do God's service or service of humanity. And she would become a true Meera of the Krishna. So that's what prediction father did. And later on it became a true. Dadi did not get married in this life, and she remained single, and she gave all her life to Baba. So once Baba also asked Dadi, would you like to get married with Krishna? And Dadi said, Baba, I am already married with Krishna. I am a real Meera of the Krishna. And after that, she took quite played very active role in this yagya. And when Mama left body, she became a second chief administrative head of this organization. And I remember I met Dadi first time in 1971. As soon as I saw Dadi, I felt that I know this person for a long, long time. I have seen her somewhere. It wasn't like that meeting first time. But the sanskaras of past suddenly emerged, and very beautiful feeling was there. At that time, I was a student. I was doing my study, 13 years old I was. And Dadi made promise in front of her
and she said that every holiday you will spend in Madhuban. Yeah, make this promise. So I did, and since then 10 years I continued my Lokik study, but all holidays I spent in Madhuban. During that time we used to do various kind of service. Sometimes in museum we were helping, sometimes in Pandav Bhavan. At that time only one complex was there, that was a Pandav Bhavan. All these other complexes built later on. And then 1980, I remember when I dedicated my life to the organization, Dadi first sent me to Gandhinagar. Gandhinagar is a capital of Gujarat. So where I stayed 6 months. And at that time in Gandhinagar is a sector system. You know, like you have to travel different sectors to do the service or to visit Gita Pathshala. And at that time in Yagya, none of the center had any cars or any facilities like that, you know. We used to travel with public transport. And our class starts early morning, finishes evening time. So buses are not available at that time. Yeah, so I remember in 1980, I explained that situation to Dadiji. And Dadiji is the one who gave first time in Yagya to give me permission to ride scooty or push bike. So I used to go on push bike or scooty, not scooter, scooty, baby, smaller version of the scooter. Yeah, that's what available at that time, you know. So I used to go to different sectors and doing Baba's service like that. So she was very understanding, very flexible, because at that time, you know, quite strict rule was there. Brahma Kumari cannot ride this, that, you know, lot of things were there. But Dadi could understand and see the whole situation. Yeah, and she given that permission. And another thing I have noticed that Dadi had very beautiful relationship with Baba. The Baba had right over Dadi. Dadi had also right over Baba. Yeah, whenever she wanted to do, she would invite Baba, invoke Baba, and Baba would come. I give you example. At that time, they built this Sukhdham building. Yeah, and as soon as they were doing inauguration of that Sukhdham building, Dadi said, first Baba would come, inaugurate this Sukhdham. Yeah, then we will go inside, otherwise we are not going to do. And Dadi Guljar was there and Baba came in Dadi's body. Yeah, and inaugurated. Yeah, and another example I remember that was happened in 1971-72. During that time, first car in Madhuban came. You remember the Fiat car? Smaller version Fiat car came. Yeah, so somebody actually given to Dadi, because Dadi had lot of difficulty to going outside to do service, so needed car. So this car came and Dadi said, I am not going to sit in this car until Baba come and inaugurate this car. Yeah, and then suddenly Dadi was there and Baba came. And first car in the Yagya, Baba inaugurated. And then Dadi Janki, Didi Manmohini, they all went to that Anadra point in that new car for the ride. Yeah, so like that, she had that right over Baba. Baba had right over Dadi. Yeah, so in 3 words, if I can just describe Dadi's life, her life was very inspiring, very caring, and very understanding. Yeah, these 3 qualities which anybody could see in Dadi's life. So that was Dadi's great life, and I'm sure everybody have experienced some of the Dadi's quality. So on Dadi's day, so nice to imbibe one quality of Dadi's life. That is giving true Shraddhanjali to Dadi.
Yeah, so think about whichever quality you liked about Dadi, and we will make effort to imbibe in our life. Okay, so now you can go and have your English Murli, and after English Murli, you can come here. We will celebrate Raksha Bandhan. Okay, so आज बाबा मुरली में 2 क्वालिटीज के पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं. एक है पावर ऑफ ट्रुथ, सत्यता की शक्ति, और दूसरी है मर्सी, रहम की भावना. ये 2 गुण जब जीवन में धारण कर लेते हैं तो आत्मा रूपी दीपक जग जाएगा, और हमारे दीपक से अनेकों के दीपक जग जाएंगे और सच्ची दिवाली हो जाएगी. तो दिवाली के पहले बाबा ने ये मुरली चलाई थी. तो बाबा की मुरली है 25 अगस्त और रिवाइज कोर्स की डेट है 4 नवंबर 2001. मुरली का सार है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण, रहम दिल बनकर, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ. सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बनकर बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ. तो आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे, सिक्की लधे, मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं. आप सभी भी मिलन मनाने आए हो ना, भाग भाग करके आए हो. तो बाप दादा भी बच्चों से मिलन मनाने के लिए भाग भाग के आए हैं. आप सभी तो इस लोक से आए हो, साकारी लोक से आए हो, और बाप दादा कहाँ से आया है? बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं. शिव बाबा परम धाम से, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक से. तो सबसे दूर से कौन आया है? कौन दूरांदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दूरदेशी तो बाप ही है. बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है. भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज. बाबा इज वेरी प्राउड. कौन सी बात पर नाज है? बोलो. विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए. ड्रामा ने खेल दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी नहीं रोक सका. तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं. आज इस घड़ी जो भी बच्चा, जो भी वरदान चाहे, वो वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा. लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में
बार बार दिल से याद करना। समझा, आज बाबा ने काम दिया है। जो भी वरदान मिलेगा ना, उसे आत्म अभिमानी बनकर बार बार याद करना। तो इससे क्या होगा? याद करेंगे तो क्या फायदा होगा? आत्मा दिल शिकस्त नहीं होगी, डिसहार्टन नहीं बन जाएगी। वरदान प्राप्त है, सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा करके रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? बाबा को साथ रख सकते हैं या मुश्किल है? तो किसी ने कहा सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में भी निरंतर बाप की बिंदी भी समाई हुई हो। ये लगाते हैं ना स्थूल बिंदी, उसी प्रकार नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। तो समा लिया, फिट हो गया। बाबा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट ना, तो बाबा की याद तो फिट हो जाती है। अब निकल तो नहीं जाएगा ना। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो क्या फायदा होगा? हमारे नैनों में बाबा समाया हुआ है, तो क्या फायदा होगा? और किसी भी तरफ नयन तुम्हारे आकर्षित नहीं होंगे, किसी भी व्यक्ति वस्तु में आकर्षित नहीं होंगे। फिर मेहनत से भी छूट जाएंगे और तरफ आपकी नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो क्या होगा? पहले नैनों में समाना है, तो फिर वही दिल में भी समाया हुआ होगा। बाबा की याद, दिलाराम दिल में भी समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि कौन सी है? कौन सी विधि है जिससे बाप इजीली नैनों में और दिल में समा जाए? तो विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो बताओ, साहेब राजी है? बाबा हमारे से खुश है। आप समझते हो बाप दादा साहेब के ऊपर राजी है, तो कितने परसेंटेज राजी है? कोई ने कहा 99, तो कोई ने कहा 75। तो बाबा कहते ऑफरिंग है। बाप दादा को तो राजी करना बहुत सहज है। भक्ति में भी सब देवी देवताओं में से शिव बाबा को क्या कहते हैं? भोलानाथ। जल्दी खुश हो जाता ना। तो बाप दादा को राजी करने का साधन है, ऑलरेडी बताया बाबा ने, है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी होता। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता ही तो महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प, वाणी और कर्म में, संबंध संपर्क में भी रास युक्त होगा। अर्थात रास को समझ कर करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक रास युक्त है उसको परखने की निशानी, अगर रास जानता है तो वो कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा। ये निशानी है।
थोड़े भी नाराज हो गए, अपसेट हो गए, माया के दास उदास हो गए, मतलब ज्ञान का रास नहीं समझा। अर्थात वो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। चलो शब्द तो और भी स्थूल बातें हैं, लेकिन बाबा ने कितनी सूक्ष्म बातें बताई है। संकल्प से भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी और दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सब के वह अपने स्वभाव संस्कार को जानने वाला रास युक्त है। तो बाबा को राजी करने की विधि हो गई। हाँ, फिर दूसरी बात बताई ना, एक तो सच्ची दिल वाली बताई, दूसरी क्या बताई? रास युक्त होकर के चलना। और रास युक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आवे, न औरों को नाराज करे। दो बातें। अगर खुद नाराज होगा तो डेफिनेटली दूसरों को भी नाराज कर देगा। तो न खुद न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूह रूहान में कहते हैं, क्या कहते हैं? कि बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती है। तो बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने से, संबंध से, विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? क्यों बाबा एक्स्ट्रा मदद देते? क्योंकि बाप जिम्मेवार है, बच्चों को संपन्न बनाए अपने साथ ले जाने के लिए। इतना बाबा को विश्वास है कि यही मेरे बच्चे मेरे साथ चलने वाले हैं। दुनिया में तो और कोई दिखाई नहीं देता बाबा को, ताकत ही नहीं है ना। तो बच्चों को इसीलिए बाबा बार बार एनकरेज करते रहते हैं। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ हो जाता है। तो बताओ बाप क्या करे? बाबा तो देता है पावर, लेकिन स्विच ऑफ है स्मृति का, तो बाबा की कैचिंग को कैच नहीं कर पाते। बाप फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश भी करते हैं, टाइम भी लग जाता है। इसीलिए जब स्विच ऑन होता है तब बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे से हो गया। फिर बाद में रियलाइजेशन होता है ना। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हो कैचिंग पावर, उसको हम क्या कहते हैं? टचिंग। उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो, ऑफ नहीं हो जावे, यानी स्मृति का स्विच। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके वो चली भी जाती है, पता ही नहीं चलता कभी कभी ना, वो चली भी जाती है। इसीलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना भी है, और डर तो नहीं रहे हो ना, और बड़ी बड़ी बातें आने वाली है। फिर बाबा कहते डर तो नहीं लगता। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सबने वर्ष क्यों मनाया, कौन सा वर्ष मनाया?
तो संस्कार से संसार परिवर्तन का ये जो 2001 की जो मुरली थी ना, उस समय का थीम था वो पूरे साल का कि संस्कार से संसार परिवर्तन। तो बाबा कहते ये मनाया ना, बोल तो नहीं गए। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया तो प्रकृति भी बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने की। क्योंकि संसार परिवर्तन कैसे होगा, सफाई होगी तब तो होगा ना। लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वो करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम ये करें व नहीं करें, जल्दी करें या धीरे से करें। कौन सा काम? संसार परिवर्तन का काम जल्दी से करें या धीरे से करें। तो प्रकृति भी पूछती है, तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? बोलो। धीरे धीरे करे ऐसे बोले कि जल्दी जल्दी करे या उसको बोले थोड़ा इंतजार करो? अब ये तो ठीक जवाब नहीं हुआ। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर क्या होगा? आपको प्लेन नहीं मिलेंगे, मधु बनाने का प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गया ना, सोते सोते आए हो ना प्लेन में आराम से आ गए। सारी सभा में से किसी को भी आने में बताओ कोई मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। हाँ हाँ, नहीं बैठे बैठे भी सो लेते हैं ना। ब्राह्मण तो एक्सपर्ट है, सारी दुनिया में कोई बैठा बैठा नहीं सोता है, ब्राह्मण ही सो सकते हैं ना। मुरली सुनते सुनते भी चले जाते हैं ना ट्रांस में तो ब्राह्मणों को प्रैक्टिस है बैठे बैठे भी सोने की। तो बाबा कहते हैं कि कोई को मुश्किलात हुई तो किसी एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, उड़ा, फिर वापस चला गया। टाइम पर फिर भी तुम पहुंच तो गई ना, भले चला गया फिर भी वापस आया ना, टाइम पर पहुंच गए ना। तो ये हिम्मत की बात है। जो थोड़ा सा डर करके बैठ गए, लेकिन आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया कि जाना ही है, तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बाकी और किसी का तो नहीं लौटा ना। उसकी कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा मिलेगा। तो अभी आगे प्रकृति को, सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करे, ऐसे करे व ऐसे नहीं करे, ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। एकदम स्पष्ट हाँ या ना, कंफ्यूजन वाली स्टेज नहीं चाहिए, इधर या उधर। तो बाबा कहते ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो प्रकृति भी आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी ना, अभी करा भी रही है। लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्व के प्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में अब समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? डॉट लगाने में सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है। तो कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में
सेकंड लगता है योग की वो अवस्था जिसको बाबा कहते बिंदु रूप, बीज रूप अवस्था। मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है या घूमता रहता है दिमाग में। कभी कभी मुख से ड्रामा ड्रामा बोलते भी रहते हैं और अंदर ड्रामा चलता भी रहता है ना, कभी ऐसे भी होता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसीलिए फर्क हो गया। बाकी तो सब बच्चे हैं, सच्चे दिल वाले बच्चे हैं। नीचे पांडव भवन का हॉल फुल था, बाबा आए थे ओम शांति भवन में। तो जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा देखो मधुबन में भी आए हैं, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से सभी बाप दादा को देख रहे हैं। कोई दिव्य नेत्रों से देख रहा है तो कोई दूरबीन से भी देख रहा है। क्योंकि याद है शुरू शुरू में बाबा आते थे ना, तो वो लोग वो दूरबीन लेके जाते थे, बिनोक्युलर्स क्या बोलते हैं, तो उससे दिखाई देता था बाबा, दूर से नजदीक दिखाई देता था। तो ऐसे फॉरेनर्स करते थे खास करके। तो बाबा कहते कि उस समय बड़े बड़े टीवी नहीं होते थे, बाबा स्टेज पर होते थे और एकदम पीछे बैठो तो दिखाई नहीं देता था, वो दूरबीन लेके जाते थे। तो बाबा कहते हैं अब देखो दिवाली तो मना ली, संगम युग तो है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अति इंद्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। चाहे आपस में रूहान करो, चाहे डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषताओं को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है, गवाने का समय समझो अभी समाप्त हो गया। गवाने का युग नहीं है ना, संगम युग कमाने का युग है, भाग्य बनाने का युग है। तो अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता है, तो मना रहे हैं। किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर गवाना और मनाना दोनों की नॉलेज आपको है, इसीलिए गवा के फिर मनाना उसका फिर इतना महत्व नहीं होता। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गवाना नहीं है। एक संकल्प भी गवाना नहीं है। कमाने के समय पर गवाएंगे तो बताओ कमाएंगे कब? जितना इकट्ठा किया उतना फिर व्यर्थ संकल्प व्यर्थ कर्म से खत्म कर दिया, तो फिर इकट्ठा नहीं हुआ ना। तो बाबा कहते हैं फिर बाद में समय मिलना नहीं है, तो चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? कितने खजाने बाबा ने दिए हैं? बड़े ते बड़ा खजाना है संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना। अब उसको प्रत्यक्ष जीवन में लाओ। ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हैं? लो, नॉलेज की महिमा करते हुए क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, नॉलेज माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है
इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल आत्मा। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई ना। हमारे संकल्प में, बोल में और कर्म में लाइट है, माइट है, तो कहेंगे नॉलेजफुल। तो कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली है ना, कि सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, सिर्फ भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट, माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? क्योंकि कुमारियों ने अपने जीवन का फैसला कर लिया है। कर लिया है या करना है? अच्छी तरह से सोच लिया कि वहां जाके सोचेगी? मधुबन में बाबा पूछ रहे हैं, या अच्छी तरह सोच लिया या अपने घर जाकर सोचेगी? तो पक्का सोच लिया है ना, तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियां ट्रेनिंग कर रही है वो हाथ उठाओ। तो उस समय बाबा के आगे 80 के करीब कुमारियां थी जो ट्रेनिंग कर रही थी। तो बाबा कहते अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती है, वो भी हाथ उठाओ, गिनती करो, आधे आधे हैं। किसी ने रहना शुरू किया था, तो कोई पढ़ रही होगी, नौकरी कर रही होगी। तो बाबा कहते अच्छा है कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता और वर तो मिल ही जाता है। कुमारियां शादी करती है ना, दुनिया में भी तो देखो दो चीजें चाहिए ना, एक घर चाहिए, अच्छा वर चाहिए। वर माना हस्बैंड। तो हमेशा घर और वर दो चाहिए। गुजराती में वर बोलते हैं, वर माना हस्बैंड, पति। कुमारियों को वर तो मिल ही गया, अभी घर भी मिलेगा, यानी सेंटर भी मिलेगा। कुमारों को भी मिलता है, जो सेंटर पे रहते हैं ना, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं कि हम पीछे क्यों, पीछे नहीं आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है। कोई भी सेंटर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं है तो बहनें कुछ भी नहीं कर सकती। तो दोनों ही जरूरी है। पांडवों का भी नाम है तो साथ साथ शक्तियों का भी नाम है। तो वर्तमान समय आप हरेक को आत्माओं के प्रति रहम दिल और दाता बन करके कुछ न कुछ उनको देना है। विश्व की आत्माओं को कुछ न कुछ बाबा कहते देते रहो। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, चाहे श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। कितनी सारी मेथड बाबा ने बताई, चाहे मनसा द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे बाबा कहते सकाश के द्वारा, चाहे अपने कांटेक्ट कंपनी के द्वारा, कुछ न कुछ बाबा कहते देते रहो। दाता बनो, रहम दिल बनो, क्योंकि ये लोग चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। जो जिस धर्म का होता है अपनी अपनी भाषा में कह रहा है। क्या कह रहा है? शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो,
सुख की किरणें दिखाओ, तो बताओ बाबा देगा कैसे? कैसे देगा बाबा? तो आप बच्चों के द्वारा ही तो बाबा देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड्स हो। कोई को कुछ भी देना होता है ना, तो हैंड्स के द्वारा ही तो देते हैं। कुछ भी किसी को देना है ना, हाथ से ही तो देते हैं। तो आप सब कौन हो? बाप के राइट हैंड्स हो ना। तो बाबा भी बच्चों के द्वारा अनुभव कराएगा उन आत्माओं को। तो पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा आपका यादगार है? हमारा राइट हैंड्स का यादगार है। कौन सा यादगार है, याद है? तो विराट रूप का चित्र देखा है ना, उसमें कितने हाथ दिखाते हैं। तो आप राइट हैंड का वो चित्र है। नहीं, वो अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार हुआ ना, एक एक हाथ में कुछ न कुछ चीजें हैं। तो बाबा कहते ये आप सबका चित्र हो गया ना। तो अभी बाप राइट हैंड्स के द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दिलाएगा ना। क्योंकि बाबा को कुछ बोलना होगा, कुछ बताना होगा, कैसे बताएगा? आत्माओं के द्वारा, राइट हैंड्स के द्वारा ही तो मैसेज देगा ना। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं ना, हमारी स्विच ऑफ हो जाती है तो पता नहीं चलता है, बाबा का वो कैचिंग पावर नहीं होता है। तो फिर बाबा निमित्त आत्माओं द्वारा अपना कार्य करवा लेता है। तो बाबा कहते हैं तो क्या इन विचारों को अंजलि नहीं देंगे? कितने तड़प रहे हैं। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में अब अपना समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में, चाहे विदेश में, लेकिन रहम दिल भावना से आज इशारा दे रहे हैं। कौन सा इशारा दे रहे हैं? तो बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि ये तो सब कुछ चल ही तो रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है। लेकिन अभी तक बाप दादा समझो रहम दिल है। बाबा सब कुछ देखता है, जानता है। इसीलिए देखते हुए भी, सुनते हुए भी बाबा को रहम आ रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम कब तक? कब तक बाबा रहम करता रहेगा है? कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है। समय क्या पूछता है? आखिर कब तक? ये प्रकृति भी पूछती है बाबा से, आखिर कब तक? जवाब दो आप। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सतगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ अभी चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो बताओ उस समय क्या करेंगे? ऑफिशियल रूप होता है ना धर्मराज का। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह, ये आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उल्लाना नहीं देना
कि बाबा आपने तो हमें सुनाया ही नहीं कि धर्मराज का भी पाठ चलने वाला है, ये तो सुनाया ही नहीं। अगर सुनाया होता तो हम तैयार हो जाते थे। इसीलिए अब क्या करो, हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव संस्कारों में अब अपना समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है, नहीं अब जमा होता जाता है। 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसीलिए इस दृढ़ संकल्प का दीप अपने दिल में जगाओ। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति अपनी बनानी है। वृत्ति, दृष्टि, विजन, कृति, चेहरा, सब कुछ कर्म बेहद का। इसीलिए बाप दादा कहते हैं अब ये तो बनानी पड़ेगी। आज ये कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? अभी तो इशारा कर रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फिर बाद में क्या कहेंगे? टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो। सेवा बढ़ रही है, समय भी आगे आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में? हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। तो बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, ऑफरिंग भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ भी तो बने तो सही ना। जो भी आत्माएं हैं कुछ तो बाबा के लिए करे ना। अनुभूति की खान अब खोलो। अच्छा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, आवे चले जावे वो नहीं। कुछ न कुछ बाबा को रिटर्न भी तो देवे ना, तभी तो उनका भाग्य बनेगा ना। लेकिन पक्के परवाने बने, अनुभूति का कोर्स कराने से वो बनेंगे। इतने तक अनुभूति होती है कि ये बहुत अच्छा है, ये स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। नहीं, ज्ञान सुनने के बाद लोग महिमा करते हैं ना, लेकिन मैं अच्छा बनूं वो नहीं करते हैं ना। तो अभी अनुभूति स्वरूप बन, फिर उनको अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, ऐसे अनुभवी परवाने अब तैयार करो, सहयोगी बनाए, उसकी मुबारक है और बनाओ। ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं। लेकिन बाप के साथ जरा सा भी इन्होंने कनेक्शन जोड़ा तो क्षमा के पीछे वो भागते रहेंगे। अपने से कनेक्शन की जगह बाबा के साथ कनेक्शन उनका जुड़वाओ, तो बेचारे उन आत्माओं को शक्ति मिलती रहेगी और क्षमा के पीछे भागते रहेंगे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष भी होंगे। सुना क्या करना है? प्लेन मिला ना,
तो इस वर्ष की अब रिजल्ट बाबा देखेंगे। अनुभूति का कोर्स कराना है। अच्छा, तो चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हद के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने वाले बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड, एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन, हर एक आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा, चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त भव। समझा? उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से उसे पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो फिर जिम्मेवारी नहीं होती है तो क्या होता है? अलबेले हो जाते हैं, आलस्य आ जाती है ना। तो जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलेपन को समाप्त कर देती है। जैसे कोई ड्यूटी होती है ना कि भैया आज भोग बनाना है, सवेरे सवेरे फटाफट नहीं तैयार हो जाते हैं, आज ये काम करना है। कोई जिम्मेवारी होती है तो फटाफट हो जाता है ना। तो उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन के द्वारा औरों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। आज का स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। जैसा टाइम वैसे बाबा कहते शक्तियों को यूज करना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जो संकल्प किया है उसमें दृढ़ रहना तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। दृढ़ संकल्प से सब सहज हो जाता। इसीलिए कभी भी कमजोर संकल्प नहीं करना। सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प करो। सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी बन करके रहो। एक मेरा बाबा दूसरा न कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा दो तो विजयी बन जाएंगे। समझा? तो आज बाबा ने क्या बोला? आज तो बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं थ्रू आउट मुरली में।
क्या याद रखेंगे? रहम दिल बनेंगे और साथ ही साथ सत्यवादी बनेंगे, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब को राजी करने में बाबा कहते कोई मेहनत नहीं है, खाली सच्ची दिल रखनी है तो हमारा साहेब राजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। बाकी आज हमारा प्यारा सा त्योहार रक्षाबंधन क्या याद दिलाता है? रक्षा का प्रतीक है ना। तो शाम को तो प्रोग्राम होगा ही होगा। जो भी अपने परिवार वाले हैं सबको थोड़ा याद दिला देना, क्योंकि लोग भूल जाते हैं ना, बेचारे बहुत बिजी रहते हैं। तो थोड़ा याद दिला देना, एनकरेज करना बाबा के घर आने के लिए। और